continue their momentum of winning streak. The Real Kings won the toss and they decided to bowl first. There are two openers on the pitch. Viren, the captain of GC Boys, will take the strike. Mrinal Khajuria will be at non-striking end. The first over will be bowled by Paing Danu from Gracewind Real Kings. If the field is set, I request umpire to start the match. Is the scorer ready? Scorer is ready, camera team is ready. We can start the match. The table looks very interesting now after the previous match. Dashad, what do you think in terms of qualifying? I feel the top two spots are already secured. There'll be tough contest between number 3 and number 4. Yes, rightly said. I think there's a very tough competition between 4 teams for 2 spots. The tournament is quite getting more interesting now. And this is one of those matches which is probably a must-win for Real Kings to stay in the tournament, to secure a position in top 4. Down the leg side, wide called. Not getting the line right, probably left-hand, right-hand combination. GC Boys have always had this advantage of having left-hand, right-hand combination at the opening. And that creates a lot of disturbance for the bowler. Good comeback. Perfect line. Good length. And Viren completely missing it. Trying to place it on the offside through the gap in the point region, but he's completely missed it. Another good ball straight. Probably there was an inside edge onto the pads. Quick single there towards short square leg. Outside off, extra bounce there. Probably the batsman didn't expect this bounce. Usually the ball keeps a bit low here, but this extra bounce, probably because of the extra pace that Paing Danu generates. Missed it. That was full, almost Yorker length. Well defended by Mrinal. No run there, it's a dot ball. So Paing Danu is keeping it very tight after the first white ball. So far conceding only 2 runs. Outside off, too far, yes. Sunil calling it wide. Trying to change his line and ending up bowling too wide on the offside. Mrinal just letting it go to the keeper. That was quick. Probably, okay, that was wide ball signaled, missing leg. There was a slight confusion, probably brushing the pads, but no, it was called wide. So slight. Outside off, wide again, too far from the batsman. Umpire Sunil has been quite strict in terms of judging the wide. The line belongs to the umpire. Outside off, wide ball. So 3 wides back to back. Wide again, probably running towards the deep fine leg. Good cover there by the fielder. Probably Tetley Nu.
saved crucial 2 runs there. Wide plus 2, 3 extra runs. So 4 wides back to back. The bowler has to get back to rhythm. 2 balls to go in this over, and already same ball, almost same shot attempted, but completely missing it. It's an over completed. So nice comeback by Danu. It's 9 runs for no loss after 1 over. New bowler Arun. Arun has been quite consistent for Real Kings. He has captured 4 wickets in 4 matches. He's one of the purple cap contender as well. But Manoj Kumar Yadav going really strong, not letting any chance for the next bowler to surpass him in terms of the bowling. So Arun to Viren. That was a very good ball. That was a very good ball. So we have to see what was the umpire's call. So is it review taken? Review taken for no ball, review taken by batsman. Review taken by batsman for no ball. We have to see if the ball hit the bat. Review taken by fielding side, sorry. My apologies. Umpire gave it out. Umpire gave it no ball, so fielding team has taken review for no ball. देखो अब जब कनेक्ट हुआ तो यहाँ लगा है, देखो उसके वेस्ट हाइट में बॉल लगा है, कनेक्ट लग गया, कनेक्ट यहाँ हुआ वेस्ट हाइट में, वेस्ट हाइट में कनेक्ट हुआ है, अरे वो फ्रंट वेस्ट लाइन के एकदम एकदम रहेगा, बॉटम में और बॉटम में ये देखो बैट्समैन फ्रंट एक बार देखो फ्रंट हाँ ये देखो इसमें देखो बड़ा करो इसको बड़ा करो तो यही होगा, जब कंक्लूसिव नहीं है तो अंपायर ये माइक खराब है. It's umpire's call.
The ball was a bit high above the waist, full toss, and it was inside edge. If that was not an inside edge, then it would have been. दिखाया था मैंने स्क्रीन पे दिखाया नहीं दिखाना था अभी दोबारा यही बोले था सर ही बोले रिव्यू का नहीं दिखाना स्क्रीन पे दिखाने राजू आप ही जाके बात आप जाके बात करो नहीं राजू को भेजो Camera team, can we have the front view, please? So it's above waist, inside edge, wherever it goes. It's above waist for the batsman, full toss ball. And it's inside edge onto the stump. And batsman is well inside the crease, he is not outside. So we see from the crease position, so it is, the impact is above waist. And if we can show the side angle also, the batsman is well inside the crease. So we have to see from the crease line. So it is umpire's call from the height perspective, it's a no ball. Thank you, camera team, for the support. Let's proceed with the game. Good call by Shakib, umpire's call. Slightly short there, attempt to pull, but it hit the body towards fine leg. Leg by is called by umpire Sunil. Mrunal back on strike. हेलो एक बार फिर से क्या नाम है उसका बॉलर का अरुण अच्छी गेंद लेग स्टंप के बाहर वाइड आप अपना ये चालू करके रखो ना स्कोरिंग उसी में देखने मजा आता है वो थोड़ा पीछे रहता है ना अरुण ऑफ स्टंप के बाहर कट कर दिया लेकिन सीधा पॉइंट के क्षेत्र रक्षक पैंग धनु के हाथ में कोई रन नहीं तो एक बार फिर से अरुण मृणाल के लिए अच्छी गेंद थी और यहां पे सिर्फ धकेला है एक रन तेजी के साथ गुड रनिंग बिटवीन द विकेट का मुजाहरा पेश किया है दोनों बल्लेबाज ने काफ़ी ही तेज़ी के साथ वहां पे अच्छी फील्डिंग विशु के द्वारा लेकिन रन आउट नहीं कर पाए एक टाइट कॉल हो सकता था अगर डायरेक्ट थ्रो लगता तो 13 रन 1.3 ओवर की समाप्ति के बाद और अच्छी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर जोरदार अपील
पूरी तरीके से यहाँ पे एक उत्साह भरी अपील। I request both the team to maintain the decorum of the game. I request both the team. We are on live and a lot of family members are watching, and I think cricket is a gentleman's game. Let's not get aggressive here. और अच्छी गेंद एक बार फिर ऑफ स्टंप के बाहर, कोई रन नहीं। तो एक अच्छी गेंदबाजी यहाँ पे अरुण के द्वारा और एक अच्छा मुकाबला दोनों ही टीम जीसी बॉयज और रियल किंग्स के बीच में। रियल किंग बिल्कुल किंग की तरह खेलते हुए आज, और लेग स्टंप के बाहर वाइड बॉल। तो अरुण काफ़ी अच्छी गेंदबाजी करी है इस ओवर में, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। एक नो बॉल, विकेट, ज़ोरदार अपील और काफ़ी रोमांच भरा ओवर रहा है ये अभी तक का। और लेग स्टंप के एक बार फिर से बाहर, वाइड बॉल अंपायर सुनील के द्वारा। तो इस ओवर में अब तक 3 वाइड फेंक चुके हैं अरुण। एक बार फिर से कप्तान हितेश उनसे कुछ बात करते हुए और कुछ दिशा निर्देश, और उस दिशा निर्देश के तहत गेंदबाजी का एक बार फिर से जिम्मेदारी। और अच्छी गेंद, यॉर्कर लेंथ, पैरों पे एक बेहतरीन गेंदबाजी अरुण करते हुए। पिछले 1 सालों में मैंने जो इम्प्रूवमेंट अगर किसी गेंदबाज में देखा है तो वो है अरुण, और दूसरी तरफ आदित्य केडिया। तो ये जो 2 गेंदबाज हैं वो बहुत इम्प्रूव्ड गेंदबाज हैं। पिछले स्पर्धा और इस स्पर्धा में काफ़ी ही उन्होंने जो इम्प्रूवमेंट किया है। अरुण की गेंदबाजी से मैं काफ़ी प्रभावित हूँ, और दूसरी तरफ बंसल प्रभावित होंगे, उनके कप्तान करण बंसल प्रभावित होंगे आदित्य केडिया की गेंदबाजी से। तो अब यहाँ पे नए बॉलर तेतलिन ऊ गेंदबाजी की जिम्मेदारी है अब तेतलिन ऊ के पास। 2 ओवर में 15 रन बिना किसी नुकसान के जीसी बॉयज। थोड़ी धीमी शुरुआत लेकिन एक ठोस शुरुआत। एक बार फिर से सामने है मृणाल। तो पिछला ओवर काफ़ी रोमांच से भरा हुआ था, बहुत सारी घटनाएं हुई। नो बॉल, और उस नो बॉल पे फिर विकेट, और उसके बाद एक ज़ोरदार अपील। और यहाँ पे अपना बॉलिंग मार्क पूरी तरीके से चूके, अंपायर का इशारा डेड बॉल। गेंदबाज हैं तेतलिन ऊ। और अच्छी गेंद, और इसे कट कर दिया है पॉइंट की दिशा में। कवर से फील्डर भाग कर गए हैं बहुत ही तेजी के साथ यहाँ पे, और यहाँ पे डायरेक्ट रन आउट। एक रन आउट यहाँ पे, मृणाल खजूरिया आउट होकर जाते हुए। और जीसी बॉय जैसा लग रहा था कि विकेट देने को आतुर थे, उस आतुरता के तहत उन्होंने अपना विकेट दे दिया है। That was a very good fielding by Kine. It was completely unnecessary run. Very good throw, direct hit onto the stumps, and Kine made it look very easy for the fielding side. Kine. It was a direct throw to the wicket-keeper side, and Mrinal Khajuria was out of the screen. He was short of by 1 meter,
and he has to lose his wicket. एक बार फिर से सामने हैं नए बल्लेबाज सुमित। अच्छी गेंद, बहुत ही इत्मीनान से उसे सामने की तरफ खेला, कोई रन नहीं। तो एक अच्छी गेंदबाजी यहाँ पे रियल किंग के द्वारा, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी। सारे फील्डर उनके काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं अपने गेंदबाज का, और इस स्पर्धा में बने रहने के लिए उन्हें ये मैच जीतना बहुत ही ज़रूरी है। हाँ ठीक है ना। हाँ? एक बार फिर से तेटलिनो, सामने है सुमित। In addition to trading activities, Shekhana Overseas also manufactures a wide range of products, including spices, atta, and other household items. Known for fast and reliable services, Shekhana Overseas has built strong connections with leading business firms across Myanmar.နာကျင်ကြိုက်ခဲဝေဒနာတွေအတွက်အကောင်းဆုံးသောကိုဒီရဲ့ Far Infrared Blaster ဟာနေရာဝန်ချွေးနေပါလားဒါဆိုရင် ဒါငါတို့အောင်လုံးကြိုက်တဲ့ royalty ပဲ ရင်းနှီးကြစားဆုံးရှုံးမှုများကိုပြန်လည်ဖြည့်တင်းပေးမယ်အကောင်း एक बार फिर से गेंदबाज तेतलिनो, और यहाँ पे किनारा है, और एक हवा में गई थी गेंद, कैच नहीं कर पाए, थोड़ा मुश्किल ज़रूर था, और एक रन आसानी के साथ यहाँ पे मिला है सुमित श्रीवास्तव को। एक अच्छी गेंद थी ऑफ स्टंप के बाहर, बल्ले का बाहरी किनारा लगा था, पॉइंट की दिशा में गेंद गई थी, हवा में ज़रूर थी, कैच की संभावना थी। Difficult catch there, running backwards. Tetley Long, good effort from him, but was not able to judge the ball, and it was a drop catch. एक बार फिर से तेतलिनो अपने बॉलिंग मार्क पे तैयार, सामने है वीरेन, और अच्छी गेंद कवर की दिशा में धकेला है, वहां पे कप्तान हितेश की बेहतरीन फील्डिंग, एक रन मिलने से नहीं रोक पाएंगे यहाँ पे बल्लेबाज को। तो इस गेंद के साथ ओवर की समाप्ति नहीं सॉरी एक बॉल बाकी है, एक गेंद और शेष इस ओवर की। अच्छी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर वाइड बॉल, लेग स्टंप के बाहर वाइड बॉल। अरे वो चालू करके दो ना। और अच्छी गेंद स्लोअर, बेहतरीन, पूरी तरीके से बीट किए यहाँ पे सुमित श्रीवास्तव, कोई Nice रन change. नहीं मिलेगा। Nice change of pace there by Tetley. Last ball of the over. So 3 overs done now. Golden GC Boys 19 for 1 wicket. तो 3 ओवर की समाप्ति पे 19 रन 1 विकेट के नुकसान पे कप्तान हितेश काफ़ी ही बॉलिंग में अपने बदलाव करते हुए यहाँ पे, और सामने से एक बार फिर बॉलिंग की जिम्मेदारी दी है अरुण को, जिन्होंने काफ़ी अच्छा पिछला ओवर डाला था,
और एक बार फिर से उन्हीं के ऊपर है जिम्मेदारी कि चौथी ओवर को करे वो। अरुण सामने होंगे वीरेन। एक अच्छी गेंद टप्पा खा के अंदर की तरफ आई, सामने उसे धकेला, एक रन लेने से नहीं रोक पाए। तो इस एक रन के साथ वीरेन का निजी स्कोर हो चला है 2। 8 गेंदों का सामना किया है उन्होंने और 3.1 ओवर की समाप्ति, 20 रन। लेग स्टंप के बाहर वाइड बॉल यहाँ पे अरुण का। तो इस एक वाइड के साथ 21 रनों का इजाफा। 3.1 ओवर अपने स्पेल की दूसरी ओवर लेकर के अरुण। और यहाँ पे आखिरी मोमेंट पे बैट्समैन पीछे हट गए, डेड बॉल। तो अरुण एक बार फिर से तैयार अपने बॉलिंग मार्क पे। सामने हैं सुमित श्रीवास्तव। और बल्ले का अंदरूनी किनारा, गेंद गई है थर्ड मैन की दिशा में। 1 रन मिलेगा यहाँ पे। काफी आसानी के साथ 1 रन पूरा किया और स्ट्राइक पे एक बार फिर से आ गए हैं वीरेन। अभी तक 9 गेंदों का सामना किया है वीरेन ने, 3 रन बनाए हैं। एक बार फिर गेंदबाज हैं अरुण। और यहां पे उछाल के मारा है मिड विकेट के सर के ऊपर से, ठीक हमारे कमेंट्री बॉक्स के नीचे। 6 रनों के ऊपर, 6 रनों के लिए। तो इस MTTM मैक्सिमम छक्के के साथ वीरेन का स्कोर हो चला है 9। 10 गेंदों का सामना किया है। एक बार फिर से अरुण तैयार होते हुए और बेहतरीन फ्लिक उसे खेल दिया स्क्वायर लेग की दिशा में। 1 रन मिलेगा यहाँ पे। तो एक अच्छी सूझबूझ भरी बल्लेबाजी यहाँ पे वीरेन के द्वारा। देख लिया है कि एक बाउंड्री आ गई है, तो अगले गेंद को सिर्फ वहीं पे धकेल के एक सिंगल चुराया। तो अब सुमित और बेहतरीन गेंद और एक अच्छी शॉट वहां पे मिड विकेट की दिशा में। यश दोषी की शानदार फील्डिंग वहां पे। 1 रन मिलने से नहीं रोक पाएंगे दोनों बल्लेबाज को। तो अरुण अपने ओवर की 4 गेंदें फेंक चुके हैं, 5 गेंदें फेंक चुके हैं। और अच्छी गेंद, थोड़ा सा जोर से मारने की कोशिश थी, पूरी तरीके से बीट किए थे, पैड पे टकराई थी गेंद, बट दोनों ही बल्लेबाज ने लेग बाई के सहारे 1 रन और चुरा लिया। तो इस रन के साथ जीसी बॉयज का स्कोर हो चुका है 31 रन 1 विकेट के नुकसान पे। 4 ओवर की समाप्ति के बाद गेंदबाजी की जिम्मेदारी एक बार फिर से तेतलिनों के पास है, जिन्होंने पिछले ओवर में मात्र 4 रन दिए थे। अरुण जिन्होंने अपने इस मैच का अपना कोटा पूरा किया है, 2 ओवर 16 रन दिया है उन्होंने बिना किसी विकेट के। अब सामने होंगे एक बार फिर से वीरेन। अच्छी गेंद सामने की तरफ धकेला, फॉलो थ्रू में कोशिश की थी, शायद गेंद हवा में थी, और एक अच्छी फील्डिंग वहां पे गेंदबाज तेतलिनों का। तो संभवतः 1 रन का बचाया है यहाँ पे अपनी टीम के लिए। एक बार फिर से वीरेन के लिए
शॉट ऑफ लेंथ और इसे फिर से मारा है स्क्वायर लेग के सर के ऊपर से 6 रनों के लिए। तो MTTM मैक्सिमम छक्का वीरेन के शानदार शॉट यहां पे वीरेन का, बेहतरीन। और एक बार फिर से यहां पे विकेट कीपर भी चुके हैं, बड़ी तेजी के साथ 1 रन पूरा किया है। यहां पे देखना ये होगा कि अंपायर क्या देते हैं। ये लेग बाई के रन हैं, तो इस लेग बाई के रन के साथ जीसी बॉयज का स्कोर हो चुका है 38 रन। वीरेन खेल रहे हैं 16 रन बनाकर 2 छक्के की मदद से। 15 गेंदों का सामना किया है उन्होंने। टेटलिनो और इस बार फिर से उसे मारने की कोशिश। शॉर्ट मिड ऑन पे कप्तान हितेश की बेहतरीन फील्डिंग और उससे भी जबरदस्त थ्रो उन्होंने कीपर के दस्तानों में तुरंत फेंका। तो एक बार फिर से और यहां पे फिर से वही शॉट, बिल्कुल कार्बन कॉपी, वैसे ही फील्डिंग और बिल्कुल उतने ही एग्रेशन के साथ कप्तान हितेश की फील्डिंग। तो बेहतरीन, बहुत ही अच्छा मुकाबला देखने को मिलता हुआ। शॉट ऑफ लेंथ और इसको उछाल करके मारा है यहां पे। और देखना ये होगा कि और यहां पे कैच ड्रॉप कर दिया है। एक बेहतरीन चांस था यहां पे सुमित श्रीवास्तव को आउट करने का। और उसके बाद एक अच्छी फील्डिंग के बाद नॉन स्ट्राइकर एंड पे वीरेन को भी रन आउट करने का एक अच्छा मौका था। दोनों ही मौका यहां पे रियल किंग्स के फील्डरों ने गंवाया है। तो इस 2 रन के साथ इस ओवर की समाप्ति हुई है। जीसी बॉयज का स्कोर हो चुका है 40 रन 1 विकेट के नुकसान पे 5 ओवर की समाप्ति के बाद। तो बहुत ही अच्छी सूझबूझ भरी पारी दोनों ही बल्लेबाज खेलते हुए। सुमित श्रीवास्तव जहां 9 गेंदों पे 5 रन बनाकर खेल रहे हैं, एक सहायक की भूमिका निभा रहे हैं। यहां पे कोशिश कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक वीरेन को दिया जाए। और दूसरी तरफ वीरेन 15 गेंदों का सामना किया है, 16 रन बनाया है, 2 छक्के लगा चुके हैं। और अब गेंदबाजी की जिम्मेदारी है यहां पे नए गेंदबाज टेटलिन ओंग। हाँ, अच्छा वो जो लड़का है उसका बड़ा भाई ये बड़े भाई। हाँ, टेटलिन ओंग। अरे गोपी भाई को पता, टेटलिन ओंग। अरे वही है। हाँ वही है। टेटलिन ओंग, bowler name Tetling Ong, right? So now Viren, और यहां पे इसे फ्लिक कर दिया है स्क्वायर लेग की दिशा में। 1 रन और एक अच्छी फील्डिंग थी, डायरेक्ट थ्रो हुआ था। थोड़ा सा वहां पे एक बार फिर से रन की संभावना थी, लेकिन बहुत अच्छा बैकअप वहां पे बालाजी के द्वारा। और 1 रन जो और मिल सकता था उसको वहीं पे उस रन को वहां पे उन्होंने कट ऑफ किया। तो 5.1 ओवर 41 रन 1 विकेट के नुकसान पे। धन्यवाद राजू भाई 40। एक बार फिर से शॉट ऑफ लेंथ और इसे सामने की तरफ मारा है लॉन्ग ऑन की दिशा में। 1 रन। तो जो भी श्रोताएं हमारे देर से जुड़े हैं, हमारे देर से जुड़े हैं, उनको मैं बता दूं कि रियल किंग्स ने टॉस जीता, पहले गेंदबाजी का फैसला किया
और अच्छी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, कोई रन नहीं। तो आप हमारे इस मैच का प्रसारण YouTube पे भी ले सकते हैं। और एक बार फिर से मारने की कोशिश, पूरी तरीके से बीट, पैड से टकराई थी, लेग बाई का 1 रन मिलेगा। और जो भी श्रोता स्टेडियम में हैं और अपने भोजन का आनंद उठाना चाहते हैं, वो हमारे कमेंट्री बॉक्स के बाईं तरफ बालाजी का ढाबा लग चुका है। आप वहां जा कर के भोजन का आनंद ले सकते हैं। एक बार फिर से टेटली नोंग, और एक अच्छी गेंद यहां पे, और या रन आउट, एक और रन आउट। That was good work by Tuya. Direct it at the non-striker's end. Breaking the partnership here. Crucial wicket probably. Very good work. यहाँ पे विराट तुया का बेहतरीन रन आउट, विकेट कीपर हैं, एक गेंद को कलेक्ट किया और उन्होंने सही समय पे सही डिसीजन लेते हुए, उन्हें पता था कि नॉन स्ट्राइकर अभी भी बहुत बाहर हैं, एक सीधा थ्रो स्टंप में दे मारा। तो इसके साथ ही यहाँ पे जीसी बॉयज का दूसरा विकेट का पतन होता हुआ 5.5 ओवर की समाप्ति के बाद 43 रन। बल्लेबाज आ गए हैं। कौन है? बैट्समैन नेम प्लीज। जितेंद्र पाठक। और इसे कवर के, बहुत अच्छी फील्डिंग, वहां पे 1 रन मिलेगा। तो Good stop there by Pang Danu, saving crucial 3 runs for Real Kings. That was strike very quickly. 6 ओवर की समाप्ति, 44 रन 2 विकेट के नुकसान पे। तो अब इस पारी की 24 गेंदें शेष हैं, 4 ओवर और शेष हैं। कप्तान हितेश मंथना करते हुए अपने सीनियर प्लेयर्स नीरज के साथ कि किस बॉलर को और यूज किया जाए, और नए गेंदबाज चौवालीस रन 2 विकेट के नुकसान पे। गेंदबाज नेम प्लीज। बॉलर्स नेम खीने। गेंदबाजी की जिम्मेदारी खीने के पास। सामने है वीरेन, 19 गेंदों पे 19 रन बनाकर खेल रहे हैं। और एक बार फिर से, और जोर से मारने की कोशिश, लेग स्टंप्स के बाहर, अंपायर का इशारा वाइड। विकेट कीपर भी पूरी तरीके से चूके। थर्ड मैन ने उस गेंद को कलेक्ट किया। तो जहां पर कोई रन नहीं मिलना चाहिए था, वहां 2 रन मिले हैं जीसी बॉयज को, एक वाइड और एक बाई के द्वारा। तो अब सामने है बल्लेबाज पाठक। काफी अच्छा रहा था उनका पिछला मैच। और गेंदबाज हैं खीने। और इसे बेहतरीन शॉट, इसे कट कर दिया है गली के सर के ऊपर से 4 रनों के लिए। तो एक अच्छा चौका, एक बेहतरीन चौका। गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी और बल्ले का फेस खोल दिया सिर्फ। गेंद गई 4 रनों के लिए बाउंड्री के बाहर। तो इस चौके के साथ जीसी बॉयज के 50 रन पूरे होते हुए 2 विकेट के नुकसान पे
और यहां पे एक बार फिर से मारा है और ये बेहतरीन कैच, विशु के द्वारा बेहतरीन कैच लॉन्ग ऑफ पे। एक अच्छी गेंद थी, आगे की तरफ रखी गई थी, जोर से मारने की कोशिश थी, सीधा गया वहां पे लॉन्ग ऑफ के फील्डर के हाथ में। तो एवीज विकेट यहां पे गिरता हुआ, एवीज आउट। इंडियन तो एक और विकेट यहां पे अब है आंसू। और अच्छी गेंद, इसे स्क्वायर कट कर दिया है फाइन लेग की दिशा में, फाइन लेग की दिशा में कट कर दिया है। एक रन यहां पे आसानी के साथ माफी चाहूंगा। और अच्छी गेंद आगे की तरफ स्लॉट में दी हुई गेंद थी, जोर से मारने की कोशिश, पूरी तरीके से बीट किए। तो वीरेन अभी तक अपने लय में नहीं दिखे हैं, जिस लय के लिए वो जाने जाते हैं, जिस आक्रामकता के लिए वो जाने जाते हैं। अभी तक 20 गेंदों का सामना कर चुके हैं। और फिर से मारने की कोशिश, लेग स्टंप के बाहर, अंपायर का इशारा वाइड। अभी तक जो गेंदबाज, और एक अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद, स्लोअर लेंथ पूरी तरीके से बीट किए। तो ये 7वें ओवर की 5 गेंदें फेंक चुके हैं। अंतिम गेंद लेकर खी ने अभी तक 8 रन खर्च किया है, 1 विकेट मिल चुका है, 1 सफलता मिली थी उन्हें पाठक के रूप में। और फिर से मारने की कोशिश, पूरी तरीके से लाइन में आए नहीं, बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा, गेंद वहीं पे लुढ़क गई। फॉलो थ्रू में एक अच्छी फील्डिंग। तो इसी के साथ 7 ओवर की समाप्ति। जीसी बॉयज का स्कोर 52 रन 3 विकेट के नुकसान पे। तो एक अच्छी गेंदबाजी यहां पे रियल किंग्स के द्वारा। बाद में हम लोग और पैंगदैनू गेंदबाजी की जिम्मेदारी यहां पे कप्तान हितेश ने उन्हें सौंपा है। अपने स्पेल का दूसरा ओवर लेकर के आएंगे, संभवतः अंतिम ओवर। और यहां पे ये बैटिंग मैंडेटरी पावर प्ले, तो सिर्फ 4 प्लेयर ही बाहर रख सकते हैं इस पावर प्ले में, जहां तक मैं देख पा रहा हूं। और लेग स्टंप के बाहर वाइड बॉल। तो जो 4 फील्डर इन्होंने बाहर रखा है, लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, मिड विकेट और थर्ड मैन। तो जैसा एक अच्छी गेंद, और यहाँ पे थोड़ा सा टाइट बट बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छी तालमेल। यहाँ पे 1 रन बड़ी आसानी के साथ चुरा लिया दोनों बल्लेबाज ने। तो जो फील्ड क्षेत्ररक्षण लगा रखा है उस हिसाब से यही है कि गेंदबाज
फुल गेंद ही डालेंगे। और सामने है वीरेन, देखना दिलचस्प होगा कि क्या करते हैं इस ओवर में। और एक अच्छी गेंद, घूम के मारने की कोशिश, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। और हाँ, और यहां पे एक अच्छी फील्डिंग कप्तान हितेश के द्वारा, कवर में खड़े थे, जोर से मारने की कोशिश थी, बल्ले पे आई नहीं थी, लेकिन एक रन लेने से नहीं रोक पाए। तो इस एक रन के साथ अब स्ट्राइक पे आ गए हैं आंसू। और निकल के मारने की कोशिश, पूरी तरीके से बीट किया है। गेंद और बल्ले का दूर दूर तक कोई संपर्क नहीं। अभी भी इस ओवर की 2 गेंदें शेष हैं। आंसू और क्लीन बोल्ड कर दिया है यहां पे। एक अच्छी गेंद, तो यहां पे एविस आउट, विकेट का पतन होता हुआ आंसू के रूप में। एक महत्वपूर्ण विकेट यहां पे मिला है रियल किंग्स को। ये दूसरा वाला है क्या? और ये एक ऑफ स्टंप के बाहर पूरी तरीके से बीट किए नए बल्लेबाज प्रदीप। तो 8 ओवर की समाप्ति पे जीसी बॉयज का स्कोर हो चुका है 55 रन 4 विकेट के नुकसान पे। तो अब मात्र 12 गेंदे इस पारी की शेष। वीरेन होंगे स्ट्राइक पे। गेंदबाजी की जिम्मेदारी यहां पे एक बार फिर से टेटलिन ओंग के पास, जिन्होंने पिछले ओवर में काफी अच्छी गेंदबाजी करी थी। और अब स्ट्राइक पे हैं वीरेन। साउंड में बजा सकते हैं। एक बार फिर से फील्ड को में थोड़ा सा परिवर्तन, थर्ड मैन को निकाल करके और इस गेंद को उछा करके मारा है, देखना ये होगा। और ये लॉन्ग ऑन के सर के ऊपर से 6 रन। तो बेहतरीन छक्का यहां पे वीरेन के बल्ले से निकलता हुआ। तो इस अपनी पारी की अब तक 3 छक्के मार चुके हैं, 25 गेंदों का सामना किया है, 26 रन बनाकर खेल रहे हैं। और एक बार फिर से यहां पे, और ये बेहतरीन कैच, फॉल ऑफ द विकेट। वीरेन एविस विकेट का पतन होता हुआ यहां पे वीरेन आउट होकर के जाते हुए 26 गेंदों का सामना किया है, 26 रन बनाए हैं अपनी टीम के लिए। काफी महत्वपूर्ण होंगे ये 26 रन। और 61 रन 4 विकेट के नुकसान पे, 5 विकेट के नुकसान पे। और अब दोनों ही नए बल्लेबाज नॉन स्ट्राइक पे हैं, जहां प्रदीप, वहीं स्ट्राइक पे अब होंगे रवि सिंह। गेंदबाज टेटलिनोंग। देखना दिलचस्प होगा कि ये अगली 10 गेंदों पे क्या करते हैं दोनों बल्लेबाज।
जीसी बॉयज अपने इस 61 के स्कोर को और कहां तक लेके जाती है। अंदरूनी किनारा 1 रन। एक बार फिर से अब प्रदीप बड़े शॉट मारने के लिए जाने जाते हैं। थर्डमैन को भी अंदर कर लिया है, मिड विकेट को बाहर, स्क्वायर लेग सर्कल के अंदर, लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन, डीप मिड विकेट डीप कवर, तेतलिनो और इसको उठा करके मारा है। यहाँ पे बेहतरीन फील्डिंग, बहुत अच्छा है। अगर ये कैच लिया जाता तो अब तक का बेस्ट कैच होता खीने के द्वारा, लेकिन थोड़ा सा शॉर्ट पड़ गए। वहीं पे कवर से फील्डर नीरज पांडे ने उस गेंद को कैदर किया, लेकिन बल्लेबाज को 2 रन लेने से नहीं रोक पाए। तो एक अच्छी फील्डिंग, संभवतः कैच भी हो सकता था। बहुत अच्छा ट्राई किया था। और इस बार उछाल के मारा है, देखना होगा। और लग गया। और यहां पे आउट। अंपायर कुछ मांगा ही नहीं तो हम क्यों चेक करेंगे, अंपायर बोलेगा। एक्स्ट्रा कवर पे 1 रन। तो अब बल्लेबाज आ गए हैं अमित त्यागी। अपडेट ही नहीं हो रहा। बल्लेबाज हैं अमित त्यागी। 6 गेंदें शेष हैं इस ओवर की, और बड़ा दिलचस्प होगा देखना कि इन 6 गेंदों में और कितने रन जीसी बॉयज अपने स्कोर में जोड़ती है। गेंदबाजी की जिम्मेदारी है खीन ए अंतिम ओवर लेकर के 65 रन है स्कोर, 6 विकेट के नुकसान पे 9 ओवर की समाप्ति के बाद। सेम फील्ड रखा है, डीप मिड विकेट, थर्ड मैन, लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन, एक्स्ट्रा कवर नहीं है ना, डीप है, हाँ है ना वहाँ, डीप एक्स्ट्रा कवर। और इसको वहीं पे मारा है, ठीक डीप स्क्वायर का कवर के ऊपर से 1 रन ही मिलेगा। अच्छी फील्डिंग वहां पे तेतलिनू के द्वारा। तो अब है रवि सिंह, और इसको अच्छे से जोर से मारा है, और देखना होगा क्या होता है ये, और इसे चेक करना है अंपायर। थर्ड अंपायर से अनुरोध है कि चेक करें कि ये चौका है कि छक्का। एक अच्छी गेंद थी, ओवर पिच, ऑफ स्टंप के बाहर, लपेट के मारा, गेंद गई मिड विकेट की दिशा में।
रुक जा वेट बोला ऐसा नहीं वेट अरे वो बर्मा का प्लेयर है वो, उसमें आउट भी होता है। इट्स फॉर इट्स ए माई स्टैमिना बाउंड्री। बेहतरीन चौका, एक बार फिर से और ऑफ स्टंप के बाहर वाइड। तो खीने अभी भी इस ओवर की 2 गेंदें शेष हैं। 71 रन 6 विकेट के नुकसान पे, और इसे सामने की तरफ धकेला है। लॉन्ग ऑन पे यश दोषी की शानदार फील्डिंग, 1 रन लेने से नहीं रोक पाए बल्लेबाज को। तो इस 1 रन के साथ 72 रन 72 फॉर 6, 9.3 ओवर, और बुरी तरीके से बीट। यॉर्कर लेंथ गेंद, बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं। अमित त्यागी एक बार फिर से मिड विकेट की तरफ 1 रन। तो अंतिम बॉल इस ओवर की, और बोल्ड कर दिया है यहाँ पे, क्लीन बोल्ड। रिव्यू तो स्टंप पे स्टंप पे डायरेक्ट लगा है। नहीं उसको क्रॉस नहीं ना, उसके बाद भी स्टंप पे अगर गिरेगा तो आउट नहीं। स्क्रीज कौन सा Sunil, I think review cannot be taken for this. It was provoked by the field players outside. The batsman didn't take the review by himself. And it's already 15 seconds past. train နေပါလားဒါဆိုရင်ဒါငါတို့အောင်လုံးကြိုက်တဲ့ royalty ပဲရင်းနှီးကြစားဆုံးရှုံးမှုများကိုပြန်လည်ဖြည့်တင်းပေးမယ်အကောင်းဆုံး royalty
Medicare Pharmacy ဆေးဆိုင်ဟာဆိုရင်ဆေးဝါးများနဲ့ဆေးဝါးဆက်ဆက်ပစ္စည်းများကိုအာမခံအပြည့်နဲ့ရောင်းချပေးနေတာဖြစ်ပြီးကာစတမာများအဆင်ပြေချောမွေ့စွာဝယ်ယူနိုင်ရန်အတွက်လည်းရန်ကုန်မြို့အနှံ့ဆိုင်ခွဲပေါင်း9ဆိုင်ကိုအချက်ချာကြတဲ့နေရာတွေဖြစ်တဲ့စမ်းချောင်းလမ်းမတော်ပဇွန်တောင်ထောက်ကျန့်နဲ့လှဲကူစတဲ့မြို့နယ်အသီးသီးမှာဖွင့်လှစ်ပေးထားပါတယ်ရှင်။ဖူးဘန်နာကနေလည်းမှာယူရရှိနိုင်ပြီးအိမ်ရောက်ပို့ဆောင်ပေးတဲ့ Fast Delivery ဝန်ဆောင်မှုလည်းရရှိနိုင်ပါတယ်ရှင်။ Division is a dynamic and growing pharmaceutical company in Myanmar, with specialization in the importation, distribution, and regulatory services for healthcare and pharmaceutical products. Division Company has a strong track record from its experienced promoters, and is poised for continued success and growth in the sector. Shekhana Overseas is a rapidly growing company in the FMCG sector, and we are expanding into the trading and export of local products from Myanmar. In addition to trading activities, Shekhana Overseas also manufactures a wide range of products, including spices, atta, and other household items. Known for fast and reliable services, Shekhana Overseas has built strong connections with leading business firms across Myanmar. नीरज पांडे और नॉन स्ट्राइक पे विवेक शर्मा, तो दोनों ही फिर से वह पुराने ओपनर्स जिनको मैं आज से साल भर पहले देखा करता था। तो सेम कॉम्बिनेशन के साथ यहाँ पे रियल किंग्स सेम बैटिंग लाइनअप के साथ, तो गेंदबाजी की जिम्मेदारी यहाँ पे अमित त्यागी अब अपने बॉलिंग मार्क पे, सामने है नीरज पांडे। देखना दिलचस्प होगा कि इस 73 रन को कैसे रियल किंग्स बनाती है और इस 73 रन को कैसे जीसी बॉयज
प्रोटेक्ट करती है। तो बड़ा ही दिलचस्प मुकाबला दोनों ही टीमों के बीच। पहली गेंद लेकर त्यागी, अच्छी गेंद और उसे वहीं पे कट किया है लेग स्टंप, और एक अच्छा रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों ही प्लेयर्स के द्वारा। बेहतरीन तालमेल का यहां पे नजारा पेश करते हुए नीरज पांडे और विवेक शर्मा। तो इस एक रन के साथ रियल किंग का खाता खुलता हुआ टीम का। और एक बार फिर से अच्छी गेंद मिडल और लेग स्टंप पे सामने की तरफ धकेला, फॉलो थ्रू में एक अच्छी फील्डिंग यहां पे अमित त्यागी के द्वारा। तो कोई रन नहीं इस गेंद पे। बड़ी ही जबरदस्त टीम है दोनों ही, रियल किंग्स और जीसी बॉयज। और इसे बल्ले का बाहरी किनारा, देखना दिलचस्प होगा कि यह चौका होता है कि नहीं। और एक अच्छी फील्डिंग वहां पे, बहुत ही अच्छी फील्डिंग, बिल्कुल एक गज अंदर इन्होंने इस गेंद को रोका है। तो संभवतः अपने टीम के लिए बड़े ही आसानी के साथ एक रन सेव किया। और यहां पे थर्ड अंपायर की मदद ली जा रही है देखने के लिए कि गेंद 4 रन है कि 3 रन है। तो अच्छी गेंद थी, ऑफ स्टंप के बाहर थी, बल्ले का बाहरी किनारा, डेलिबरेटली खेला गया वो शॉट था, ना कि बाहरी किनारा मैं कहूंगा। आखिरी मोमेंट पे उसे कट किया था और गेंद गई थी थर्ड मैन की दिशा में, शॉर्ट थर्ड मैन से। और यहाँ पे 3 रन, हमारे थर्ड अंपायर ने इसे 3 रन दिया है। तो इस 3 रन के साथ एक अच्छी गेंद, शॉर्ट कवर पे बेहतरीन फील्डिंग यहां पे सुमित श्रीवास्तव। 4 गेंदों पे 4 रन दिया है यहां पे अमित त्यागी, काफी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। दूसरी तरफ 2 अनुभवी बल्लेबाज नीरज पांडे और विवेक शर्मा, दोनों ही आक्रामक बल्लेबाज भी हैं और परिस्थिति के हिसाब से अपने आप को ढालते भी हैं। तो एक अच्छे बल्लेबाज की निशानी। काफी क्रिकेट खेला है हमने साथ में और मेरा मानना है कि दे आर वन ऑफ द बेस्ट इन यांगून। एक बार फिर से अमित त्यागी, अच्छी गेंद और यहां पे सामने की तरफ धकेल के बड़ी आसानी के साथ 1 रन चुरा लिया है। और यहां पे ओवर थ्रो और एक और रन ओवर थ्रो के रूप में खामियाजा भुगतना पड़ा यहां पे जीसी बॉयज को। थोड़ा सा उत्साह में थी टीम, जहां 1 रन मिलने चाहिए थे वहां 2 रन दिया है। गेंद को उठा करके विकेट पे मारने की कोशिश और उसी का खामियाजा, 1 की जगह 2। अंतिम गेंद और एक अच्छी गेंद वहीं पे टैप कर दिया। कोशिश थी फिर से तेजी के साथ 1 रन चुराने की, लेकिन नाकामयाब रहे। तो 1 ओवर की समाप्ति पे 6 रन है स्कोर रियल किंग्स का। एक अच्छी शुरुआत, धीमी लेकिन ठोस, और गेंदबाजी की जिम्मेदारी। ओवर की समाप्ति हुई है, 1 ओवर की समाप्ति, 6 रन। स्ट्राइक पे अब आएंगे विवेक शर्मा। अरे स्ट्राइक पे विवेक शर्मा आएगा रे। अच्छा, वीरेन और जोर से मारने की कोशिश, ऑफ स्टंप के बाहर पूरी तरीके से बीट किए
एक अच्छे गेंदबाज हैं वीरेन, बाएं हाथ के, काफी ही गुणवत्ता से भरे हुए गेंदबाज। कभी फास्ट करते हैं, कभी स्पिन करते हैं, सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को ढालते हैं। तो एक बड़े ही प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं। और एक अच्छी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, एक अच्छी गेंदबाजी, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। तो बड़ा ही कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा यहाँ पे। एक तरफ रियल किंग्स जहां सितारों से भरी हुई उनकी बैटिंग लाइनअप है, वहीं दूसरी तरफ जीसी बॉयज काफी एक्सपीरियंस बॉलिंग लाइनअप के साथ। और इसे सामने की तरफ धकेल दिया है लॉन्ग ऑन की दिशा में, आसानी के साथ 1 रन मिलेगा यहाँ पे। तो अपने इन 3 गेंदों में 1 रन मात्र दिया है यहाँ पे वीरेन ने। अब स्ट्राइक पे आ गए हैं नीरज पांडे, काफी अच्छे फॉर्म में हैं, पिछले 2 मैचों में भी काफी अच्छे फॉर्म में थे। दुर्भाग्यपूर्ण दोनों ही बार उन्हें रन आउट होना पड़ा। तो एक बल्लेबाज के लिए बड़े दुर्भाग्य की बात होती है कि वो रन आउट हो। और इस बार फील्ड में थोड़ा सा बदलाव, फाइन लेग से एक और गली, एक थर्ड मैन, लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन। और यहां पे कवर की दिशा में खेला है, एक्स्ट्रा कवर के पास एक प्लेयर थे रवि। गेंद शॉट में उतनी जान नहीं थी, अगर जान होती तो संभवतः उनके हाथों में जा सकती थी ये गेंद। एक अच्छी गेंद थी, 1 रन मिलेगा यहां पे। वीरेन एक बार फिर से तैयार, और अच्छी गेंद, फॉलो थ्रू में बहुत अच्छी फील्डिंग। तो बड़ा ही घमासान मुकाबला देखने को मिलता हुआ यहां गेंद और बल्ले के बीच में। 1.5 ओवरों में 8 रन, बिना किसी नुकसान के रियल किंग्स। अंतिम गेंद के साथ वीरेन, और इसे खेला है, कट किया है पॉइंट पे। यहां पे सुमित श्रीवास्तव की एक अच्छी फील्डिंग, थोड़ा सा फंबल किए थे। तो इस गेंद के साथ ओवर की समाप्ति होती हुई यहां पे 2 ओवर की समाप्ति पे 8 रन। दोनों ही बल्लेबाज 4-4 रन बनाकर खेल रहे हैं। विवेक शर्मा ने जहां 7 गेंदों का सामना किया है, वहीं नीरज पांडे ने 5। बॉलिंग की गेंदबाजी जितेंद्र पाठक के हाथों में, काफी प्रतिभाशाली गेंदबाज हैं। अपने कैरियर का पहला विकेट उन्होंने विख्यात बल्लेबाज नबी को बोल्ड करके लिया था। तो बड़ा अचीवमेंट रहा होगा उनके लिए। एक बार फिर से, और लेग स्टंप के बाहर फ्लिक कर दिया है, गेंद गई है थर्ड मैन और लॉन्ग लेग के बीच से 4 रनों के लिए। फाइन लेग और थर्ड मैन की दिशा में 4 रन मिलेगा यहां पे। बेहतरीन चौका यहां पे, माई स्टेमिना चौका, माई स्टेमिना चौका। तो एक अच्छा बेहतरीन शॉट, सिर्फ और बहुत बेहतरीन सम्मान दिया है। एक अच्छा कमबैक यहां पे पाठक के द्वारा। तो काफी अच्छी पेस है इनकी, और इस पेस का पूरा फायदा उठाया था पहली गेंद पे, सिर्फ दिशा दे दी थी और उसी का नतीजा के गेंद सीधा सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए चली गई थी। और एक अच्छी गेंद, और इसे मिड विकेट के दिशा में दे मारा है 4 रनों के लिए। एक और माई स्टेमिना चौका नीरज पांडे के बल्ले से निकलता हुआ। तो बेहतरीन शॉट, जैसा कि मैंने आपसे कहा था, काफी एक्सपीरियंस बल्लेबाज हैं, परिस्थिति को देखते हैं, गेंदबाज को देखते हैं और बिल्कुल उसका ही नमूना पेश करते हुए उन्होंने
इन 3 गेंदों में 2 चौका बटोर लिया है और इस बार मिड विकेट को थोड़ा सा और स्क्वायर की तरफ भेजते हुए और सामने की तरफ धकेल दिया है लॉन्ग ऑफ से। आशु की गेंद की तरफ बड़ी तेजी के साथ आए, लेकिन 1 रन लेने से यहां पे नीरज पांडे को नहीं रोक पाए। तो एक अच्छी शुरुआत, ठोस और मजबूत शुरुआत यहां पे रियल किंग्स के द्वारा बिल्कुल वेल प्लान्ड बैटिंग कर रहे हैं। हाँ? आशु जो भी है। और यहाँ पे थोड़ी सी फील्ड में बदलाव, पॉइंट को अब बाहर कवर, एक्स्ट्रा कवर, एक बार फिर और बेहतरीन शॉट लॉन्ग ऑफ से आशु की एक अच्छी फील्डिंग। और यहां पे नो बॉल, फ्री हिट। तो बल्लेबाज नीरज पांडे के मुंह में पानी आ गया होगा बिल्कुल मेरा मानना है, क्योंकि इस गेम में अगर नो बॉल आपको मिले इस फॉर्मेट में तो बिल्कुल हर एक बल्लेबाज चाहता है कि वो मिले मुझे। और ये फ्री हिट का देखते हैं कितना लाभ उठा पाते हैं। एक बार फिर से और बाहर निकल के मारने की कोशिश थी, थोड़ा सा यहां पे, और एक बार फिर से मिस फील्ड, अननेसेसरी थ्रो यहां पे। प्रदीप एक 2.5 ओवर, 1 गेंदे शेष। इस ओवर की अंतिम गेंद जितेंद्र पाठक की, 12 रन खर्च कर चुके हैं, 2 चौका उन्हें इस ओवर में अब तक लग चुका है। दोनों ही चौका नीरज पांडे के बल्ले से 14 रन बनाकर खेल रहे हैं। 10 गेंदों का सामना किया है उन्होंने। विवेक शर्मा 5 रन, 8 गेंदों का सामना किया है। तो रियल किंग्स थोड़ी स्लो शुरुआत, लेकिन बड़ी ही ठोस। और एक बार फिर से जितेंद्र पाठक, और इसे कवर के सर के ऊपर से मारा है, लेकिन एक्स्ट्रा कवर पे बहुत अच्छी फील्डिंग है यहाँ पे रवि। 1 रन। तो इस 1 रन के साथ रियल किंग्स का स्कोर हो चुका है 21 रन, 3 ओवर की समाप्ति पे बिना किसी नुकसान के। तो एक बिल्कुल हुई सधी हुई शुरुआत करी है यहाँ पे दोनों ही बल्लेबाज ने। बड़े ही सावधानी के साथ बैटिंग करते हुए, बिना किसी अननेसेसरी रिस्क के बल्लेबाजी कर रहे हैं। अब गेंदबाजी की यहाँ पे कमान सौंपी गई है आशु को। आशु बाएं हाथ के गेंदबाज, और सामने होंगे विवेक शर्मा। और इसे धकेल दिया है कवर में 1 रन के लिए। शॉर्ट कवर पे सुमित श्रीवास्तव की अच्छी फील्डिंग। 3.1 ओवर 22 रन। आशु, सामने है नीरज पांडे, और अच्छी गेंद पैरों पे शॉट की दिशा में धकेल करके 1 रन पूरा किया है। बड़ी ही सूझबूझ भरी बैटिंग। तो जो भी यंगस्टर इस गेम को देख रहे हैं वो इसको देख के सीख सकते हैं कि बल्लेबाजी कैसे करी जाती है। और
बेहतरीन शॉट लॉन्ग ऑन की दिशा में, और यहाँ पे एक मिस फील्डिंग, 4 रन यहाँ पे। माय स्टेमिना चौका विवेक शर्मा के बल्ले से निकलता हुआ। तो आज जो ओपनिंग बैटिंग में इन्होंने बदलाव किया है उसका पूरा फायदा यहाँ पे रियल किंग्स को देखने को मिलता हुआ। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि पिछले 4 मैचों से वो क्या कर रहे थे, और शायद उन गलतियों से आज सीख लिया है और फिर से अपने वही पुराने ओपनिंग जोड़ीदार। और यहां पे बेहतरीन शॉट, देखना दिलचस्प होगा। और यहां पे कैच ड्रॉप किया है यहाँ पे मृणाल खजूरिया ने। पॉइंट की दिशा में खेला गया शॉट था, बल्ले पे पूरी तरीके से आई नहीं थी, थोड़ा सा बाहरी था, पीछे की तरफ दौड़ करके इस कैच को पूरा करना था। और एक अच्छी शॉट थी, जोर से मारने की कोशिश, बल्ला टूटा वहां पे। एक बार फिर से सामने होंगे नीरज पांडे, गेंदबाज आशु। दशमलव और बेहतरीन सूझबूझ भरी यहाँ पे बल्लेबाजी, सिर्फ पॉइंट की दिशा में धकेला, बड़ी आसानी के साथ दौड़ के 1 रन पूरा किया। 3.5 ओवर की समाप्ति के बाद 29 रन बिना किसी नुकसान के। तो एक अच्छी बल्लेबाजी। तो जैसा कि मैं पहले बात कर रहा था कि जो भी यंगस्टर इस मैच को देख रहे हैं उनको इन दोनों बल्लेबाज से सीखना चाहिए कि कैसे बल्लेबाजी करी जाती है इस विकट परिस्थिति में, कैसे जब परिस्थिति आपके अनुकूल ना हो तब कैसे बैटिंग करी जाती है, और उसका पूरा का पूरा यहाँ पे नमूना पेश करते हुए दोनों ही बल्लेबाज। और बेहतरीन शॉट, 4 रन मिलेगा। बेहतरीन शॉट यहाँ पे पॉइंट के ठीक दाहिने तरफ से इस गेंद को मारा है विवेक शर्मा का। एक और यहाँ पे जोरदार शॉट, माय स्टेमिना चौका। इस चौके के साथ विवेक शर्मा का स्कोर हो चुका है 16। दोनों ही बल्लेबाज 16-16 रन बनाकर खेल रहे हैं। दोनों ने ही 2-2 चौके मारे हैं, 12-12 गेंदों का सामना करा है। तो बेहतरीन बल्लेबाजी, बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी यहाँ पे। 33 रन 4 ओवर की समाप्ति के बाद बिना किसी नुकसान के। तो अब बल्लेबाजी गेंदबाजी के लिए आ चुके हैं मृणाल खजूरिया। देखना ये होगा कि अब काफ़ी एक्सपीरियंस गेंदबाज हैं, काफ़ी अच्छी इन स्विंगर डालते हैं। देखना दिलचस्प ये होगा कि आज क्या करते हैं अपनी टीम के लिए। सामने होंगे नीरज पांडे। पहली गेंद और इसे स्क्वायर लेग पे दे मारा है 4 रन लेने से। और बेहतरीन फील्डिंग, माफी चाहूंगा, थोड़ा सा आउटफील्ड यहाँ पे स्लो है और उसका खामियाजा यहाँ पे भुगतना पड़ा, वरना ये 4 रन थी। मिड विकेट और स्क्वायर लेग के बीच में प्लेस किया था, बेहतरीन शॉट था। मात्र 1 रन। एक बार फिर से
और इसे कवर की दिशा में 4 रन, कोई नहीं रोक सकता इसे। एक बेहतरीन शॉट, शॉट ऑफ लेंथ ऑफ स्टंप के बाहर, और जैसे ही आई उसे जोर का झटका दिया एक्स्ट्रा कवर के बाहर 4 रनों के लिए। तो एक बेहतरीन बल्लेबाजी यहां पे विवेक शर्मा के द्वारा। अब यहां पे थोड़ी सी जीसी बॉयज के खेमे में बातचीत होती हुई कप्तान वीरेन फील्ड को प्लेस करते हुए स्क्वायर लेग को अंदर बुलाया है। डीप मिड विकेट, कवर, एक्स्ट्रा कवर, डीप एक्स्ट्रा कवर, लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन। 5 फील्डरों के साथ एक बार फिर से गेंदबाजी के लिए मृणाल खजूरिया तैयार होते हुए। सामने होंगे विवेक शर्मा। और अच्छी गेंद, बेहतरीन बल्लेबाजी, आखिरी मोमेंट पे इसे प्लेस कर दिया है। गेंद गई है फाइन लेग की दिशा में, बड़ी ही आसानी के साथ 2 रन चुराया है यहां पे। तो एक अच्छे तालमेल का यहां पे नमूना पेश करते हुए दोनों ही बल्लेबाज, बहुत ही शानदार खेल का प्रदर्शन। 4 गेंदें इस ओवर की हो चुकी हैं। सॉरी, 1 सेकेंड, अरे भूपेन कितना हुआ चेक कर। 3 गेंदें इस ओवर की हो चुकी हैं, 3 गेंदें और शेष हैं। 4.3 ओवर की समाप्ति पे रियल किंग्स 40 रन, अब मात्र 34 रनों की उन्हें दरकार है। 33 गेंदों अभी भी शेष इस मैच की। तो बड़ा ही आसान सा ये स्कोर दिखता हुआ, दोनों ही बल्लेबाज ने इसे बड़ा आसान कर दिया है। एक बार फिर से, और अच्छी गेंद, लेकिन ऑफ स्टंप के काफी बाहर, वाइड। तो ये वही पिच है जहां पे जीसी बॉयज थोड़ी स्ट्रगल करती हुई दिखी थी आज, और आज उसी पिच पे ये दोनों बल्लेबाज बड़े ही सरलता के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं। और इसे यहां पे फिर से मारा है पॉइंट की दिशा में। देखना ये होगा कि आशु इस गेंद को फील्ड कर पाते हैं कि नहीं। अच्छी फील्डिंग यहां पे, 1 रन लेने से नहीं रोक पाए। तो इस 1 रन के साथ विवेक शर्मा का स्कोर हो चुका है 23 रन, 23। 3 चौके की सहायता से 16 गेंदों का सामना किया है। सामने अब होंगे नीरज पांडे। गेंदबाजी की जिम्मेदारी अभी भी मृणाल खजूरिया के पास। अभी भी 2 गेंदें शेष। और निकल के मारने की कोशिश, उत्साह से भरा शॉट, पूरी तरीके से चूके। गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, गेंद गई सीधा विकेट कीपर वीरेन के दस्तानों में। तो एक और गेंद इस ओवर की बची हुई है, अंतिम गेंद, 5वें ओवर की अंतिम गेंद। रियल किंग्स 42 विदाउट एनी लॉस। और इसे जोर से मारा है, फिर से गई है गेंद लॉन्ग ऑन पे। यहां पे अच्छी फील्डिंग त्यागी के द्वारा। तो 5 ओवर की समाप्ति पे रियल किंग्स 43। तो अब उन्हें मात्र 30 गेंदों पे 31 रनों की जरूरत है, जो कि इस फॉर्मेट में काफी आसान सा लगता हुआ। पूरे 10 विकेट अभी भी उनके शेष हैं, और उनकी बल्लेबाजी की जो लाइनअप है वो सितारों से भरी हुई है। चाहे उसके बाद यश दोषी हो, बालाजी हो, हितेश जैन हो, या फिर विराट थुहा। तो काफी सारे बल्लेबाज हैं उनके पास, एंड दे आर इनफ कैपेबल टू डू एनीथिंग। तो अब सामने होंगे, गेंदबाजी की जिम्मेदारी हमारे दादा, यूनिवर्सल दादा सुदीप चट्टोपाध्याय।
और दादा एक बार फिर से तैयार। और लेग स्टंप के बाहर वाइड बॉल। और यहां पे एक अच्छा मौका, और एक अच्छा मौका था यहां पे, बल्ले का बाहरी किनारा। दादा अपने आउट स्विंग के लिए काफी मशहूर हैं, लेग कटर काफी अच्छा डालते हैं। टप्पा खाकर जरूर ये गेंद बाहर गई होगी। और एक बार फिर अच्छी गेंद, मिड विकेट पे 1 रन मिलेगा यहां पे विवेक शर्मा को। तो मैं बात करना चाहूंगा इससे पहले वाली गेंद की, जो किनारा लगा था, गेंद गई थी विकेट कीपर के दस्तानों में, जहां पर वीरेन अपने दाहिने तरफ छलांग लगाकर इसे लपकने की कोशिश कर रहे थे, पूरी तरीके से विफल हुए और एक अच्छा विकेट। और यहां पे मार दिया है इसे फाइन लेग की दिशा में 4 रनों के लिए। माई स्टेमिना चौका नीरज पांडे के द्वारा। तो मैंने कहा ना, आपने यहां कैच ड्रॉप किया और उन्होंने ये चौका जड़ दिया। तो ऐसे मोमेंट पे, जो कि मेरा मानना है बॉलर काफी फ्रस्ट्रेट होता होगा, जब गेंदबाज एक अच्छी गेंदबाजी कर रहा हो और क्षेत्ररक्षक से उसका सहयोग ना मिले और उसके बाद फिर वही गेंदबाज को चौका छक्का लग जाए, तो काफी फ्रस्ट्रेशन होता है। और एक बार फिर से, और अच्छी गेंद बट लेग स्टंप के बाहर वाइड बॉल। तो एक गेंदबाज के लिए यही होता है कि उनके जो क्षेत्ररक्षक हैं वो ज्यादा से ज्यादा सहयोग करें। और एक बार फिर से, और अच्छी गेंद, बहुत अच्छी वापसी यहां पे दादा के द्वारा ऑफ स्टंप के बाहर, टप्पा खा के और बाहर निकली। कट करने की कोशिश थी, पूरी तरीके से चूके। तो इस चौके के साथ एक्चुअली रियल किंग्स के 50 रन पूरे हुए थे, 51 रन बिना किसी नुकसान के। एक बार फिर से ऑफ स्टंप के बाहर एक अच्छी गेंद, पूरी तरीके से बीट किया। और यहां पे वाइड बॉल ऑफ स्टंप के बाहर। तो मात्र अब 22 रनों की जरूरत है रियल किंग्स को। और ये जबरदस्त शॉट सीधा साइड स्क्रीन के ऊपर 6 रनों के लिए। MTTM मैक्सिमम छक्का नीरज पांडे के बल्ले के द्वारा। बेहतरीन शॉट। ये शॉट जो आज के खेल में जितने भी शॉट लगे हैं उसमें वन ऑफ माय फेवरेट शॉट, क्योंकि अगर बैट्समैन आपको बॉलर के सर के ऊपर से मारे तो वो एक अद्भुत शॉट होता है, जिसे देखने का मजा ही कुछ और है। तो बड़ा ही बेहतरीन शॉट, सीधा हमारे कैमरामैन के सर के ऊपर से इसे 6 रन के लिए दे मारा था। तो इस छक्के के साथ रियल किंग्स का स्कोर हो चुका है उछलता हुआ 58 रन बिना किसी नुकसान के। 6 ओवर की समाप्ति पे अब मात्र 16 रनों की जरूरत है यहां पे रियल किंग को। 24 गेंदें अभी भी शेष, 4 ओवर अभी भी शेष। बड़ा ही आसान सा कर दिया है इस लक्ष्य को दोनों बल्लेबाज ने। और यहां पे कप्तान हितेश, जिन्होंने और एक अच्छी गेंद, पॉइंट की दिशा में 1 रन। तो यहां पे कप्तान हितेश की जो पॉलिसी थी, जिसको आज उन्होंने चेंज किया अपने पुराने ओपनर्स पे फिर से वापस से भरोसा जताते हुए, और उसका ही वो फायदा मिला है कि दोनों बल्लेबाज बड़े ही सरलता के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं। एक बार फिर से 59 रन।
और ऑफ स्टंप के बाहर अच्छी गेंद थी, थोड़ा सा स्लोअर, बल्लेबाज पूरी तरीके से चूके, कोई रन नहीं मिलेगा। तो दोनों ही बल्लेबाज नीरज पांडे जहां 29 रन बनाकर खेल रहे हैं, और एक और अच्छी गेंद, 21 गेंदों का सामना किया है उन्होंने, 29 रन बनाकर खेल रहे हैं, 3 चौका और 1 छक्का मार चुके हैं। विवेक शर्मा जहां 25 रन 18 गेंदों का सामना किया है, दोनों ने 138 के स्ट्राइक रेट से रन बना रहे हैं, तो काफी अच्छा कॉम्बिनेशन। और ये लेग स्टंप से गेंद अंदर की तरफ आई, ये बैट्समैन शफल करके इसे फ्लिक करना चाहते थे, पूरी तरीके से बीट किए, गेंद की लाइन में नहीं आ पाए, और शायद ये थोड़ा पेस से भी शायद बीट किए हैं। लेग स्टंप उनका उड़ गया, तो यहां पे पहला विकेट गिरता हुआ नीरज पांडे के रूप में, पहला झटका यहां पे रियल किंग्स को। और अब नए बल्लेबाज आ गए हैं, यश दोषी, काफी आक्रामक बल्लेबाज। और अब एक अच्छी गेंदबाजी यहां पे वीरेन, अब तक उन्होंने जो 1.3 ओवर की गेंदबाजी करी है, मात्र 3 रन खर्च किया है, 1 विकेट ले चुके हैं। और अब सामने होंगे यश दोषी, जैसा कि मुझे याद आ रहा है YTCL में उन्होंने काफी रन बनाए थे, और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि रियल किंग्स सितारों से भरी हुई है। और आते के साथ इस गेंद को जोर से मारने की कोशिश थी, पैड से टकराई, गेंद गई स्क्वायर लेग अंपायर के पास, 1 रन मिलेगा वहां पे। तो वीरेन 1.4 ओवर में अब तक 4 रन खर्च किया है, 1 विकेट ले चुके हैं। सामने होंगे विवेक शर्मा, और बहुत अच्छी सूझबूझ भरी वाली बल्लेबाजी, आखिरी मोमेंट पे उस गेंद को वहीं पे रोका फॉलो थ्रू में। एक गेंदें अभी भी शेष हैं इस ओवर की। एक गेंदें अभी भी शेष इस ओवर की। स्कोरर भूपेन, could you please confirm? Still 1 ball to go. Still 1 ball to go from this over. .5 over, 60 for 1. और यहां पे थोड़ा सा हमारे तो ओवर की समाप्ति हुई है। 7 ओवर की समाप्ति पे 61 रन, 1 विकेट के नुकसान पे अब 18 गेंदों पे 13 रनों की जरूरत। बल्लेबाजी के लिए सामने होंगे यश दोषी। ही डील्स ओनली इन बाउंड्रीज। और गेंदबाज होंगे जितेंद्र पाठक, जिन्होंने पहले ओवर में 13 रन खर्च किए थे। कोई सफलता नहीं मिली थी अपने स्पेल का अंतिम ओवर और दूसरा ओवर लेकर के। लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, एक्स्ट्रा कवर, मिड विकेट, डीप मिड विकेट, स्क्वायर लेग,
5 बाहरी फील्डरों के साथ बिल्कुल 30 गज के दायरे से रन अप लेते हुए, और अभी भी कप्तान वीरेन फील्ड से नाखुश, अभी भी थोड़ा चेंज करते हुए मिड विकेट को और थोड़ा स्क्वायर किया है उन्होंने। और अब यहां पे जितेंद्र पाठक, और पहली गेंद अच्छी गेंद थी, थोड़ी सी मिडिल ऑफ लेग पे, सीधा गई विकेट कीपर वीरेन के दस्तानों में, कोई रन नहीं। तो काफी युवा गेंदबाज हैं, उत्साह से भरे हुए। एक बार फिर से, और उसको उठा के दे मारा है 6 रनों के लिए। बिल्कुल ही यहां पे MTTM मैक्सिमम छक्का यश दोषी के बल्ले से निकलता हुआ, बड़ा ही आसान सा शॉट। तो कभी कभी कुछ बल्लेबाज ऐसे होते हैं जो गिफ्टेड होते हैं, और एक बार फिर से उठा के मारा है 6 रन। बैक टू बैक 2 MTTM मैक्सिमम सिक्सेस। तो मात्र 1 रन। तो मैंने अभी क्या कहा था कि कुछ बल्लेबाज गिफ्टेड होते हैं, एंड यश दोषी इज वन ऑफ देम, कि जो शॉट जिस गेंदबाज को बहुत सारे बल्लेबाज स्ट्रगल करते हैं उसको बड़े आसानी के साथ इन्होंने आते के साथ 2 छक्का जड़ दिया। तो यही गिफ्ट है उनका, यही शैली है उनकी, और उसी शैली का वो यहाँ पे प्रदर्शन करते हुए। मात्र 1 रन बचा हुआ है जीत के लिए यहाँ पे रियल किंग्स को। काफी खुशी का माहौल उनके खेमे में, और यहाँ पे एक और शॉट सीधा मिड विकेट पे 4 रन। तो यहाँ पे माई स्टेमिना चौका, और इस चौके के साथ रियल किंग्स की टीम जीत गई है 9 विकेट से। बेहतरीन बल्लेबाजी, गेंदबाजी, क्षेत्ररक्षण, सारे ही डिपार्टमेंट में इन्होंने परास्त किया है जीसी बॉयज को। तो एक अच्छी बल्लेबाजी, मोबाइल उठा लो, मोबाइल उठाए क्या? हाँ, नहीं मेरा नहीं, गोपी भाई का शायद। बेहतरीन बल्लेबाजी, गेंदबाजी का यहाँ पे मुजाहरा पेश किया है। तो इस जीत के साथ रियल किंग्स काफी उत्साह से भरी हुई, और एक अच्छी बैटिंग यहाँ पे, जहाँ पे ओपनर बल्लेबाज विवेक शर्मा और नीरज पांडे ने काफी अच्छी शुरुआत करी, और उसको फिनिश लाइन पे बड़े ही आसानी के साथ यश दोषी ने पहुंचा दिया। आते के साथ उन्होंने 2 छक्का और 1 चौका लगा करके सुपर स्ट्राइकर ऑफ द मैच तो जरूर ले लिया होगा। कौन? सो नाउ आई वुड लाइक टू invite both of the team माइक है आपके पास ना? अब चलो कंटिन्यू अब करो तो।နာကျင်ကြိုက်ခဲဝေဒနာတွေအတွက်အကောင်းဆုံးသောကိုဒီရဲ့ Far Infrared Blasterဟာနေအောင်ချွေးနေပါလားဒါဆိုရင်ဒါငါတို့အောင်လုံးကြိုက်တဲ့ royalty ပဲ ရင်းနှီးကြစားဆုံးရှုံးမှုများကိုပြန်လည်ဖြည့်တင်းပေးမယ်အကောင်းဆုံး royalty Care Pharmacy ဆေးဆိုင်ဟာဆိုရင်ဆေးဝါးများနဲ့ဆေးဝါးဆက်ဆက်ပစ္စည်းများကိုအာမခံအပြည့်နဲ့ရောင်းချပေးနေတာဖြစ်ပြီးကာစတမာများအဆင်ပြေချောမွေ့စွာဝယ်ယူနိုင်ရန်အတွက်လည်းရန်ကုန်မြို့အနှံ့ဆိုင်ခွဲပေါင်း9ဆိုင်ကိုအချက်ချာကြတဲ့နေရာတွေဖြစ်တဲ့စမ်းချောင်းလမ်းမတော်ပဇွန်တောင်ထောက်ကျန့်နဲ့လှဲကူစတဲ့မြို့နယ်အသီးသီးမှာဖွင့်လှစ်ပေးထားပါတယ်ရှင်။ဖူးဘန်နာကနေလည်းမှာယူရရှိနိုင်ပြီးအိမ်ရောက်ပို့ဆောင်ပေးတဲ့ Fast Delivery ဝန်ဆောင်မှုလည်း The orange cap holder, which is sponsored by Eco Asia, will be written by Gopi. Since the beginning, he is the contender, top contender.
So as on date, Gopi is the orange cap holder. I request Yash Doshi to come over and hand over the orange cap to Gopinath, please. Center. Center. Exactly center. Pena do, topi pena do. So orange cap brought to you by Eco Asia Pharmaceutical Company. Thank you so much, Eco Asia, for your participation. Okay. A photograph, please. Topi pena do, baby. And there is one more award. Coriander leaf presents safe hands. So till now the highest catcher will get this cap. So this is sponsored by Delhi Delhi, a restaurant owned by Coriander Leaf Group of Restaurant, one of the best Indian fine dining restaurant. So thank you so much Coriander Leaf and Delhi Delhi for participation in this tournament. So you sponsored this white cap for the highest number of catches. So as on date, the highest number of catches goes to it goes to captain of Master Blaster Rahul BC. Rahul BC, you are the white cap holder for now. Please come fast. So till then, we would like to thank our sponsors, VCare Pharmacy, Royal British International School, the Coriander Leaf Indian Group of Restaurants, AV's online store, Garuda Lubricants. Thank you so much for your participation. So I have the Rahul with me, who is the highest catches. I request Nabi to come and hand over this cap to Rahul BC, one of the best fielders. Sent. Topi pehna do, pehna do. सामने देखिए फोटो निकालो. Congratulations, Rahul. Over to you, Gopi, for the post-match presentation for the match between Real Kings and GC Boys. Thank you, Dashrath. So it was an exciting match between Real Kings and GC Boys. It was more of a formality game for GC Boys. I think they have secured second position in the table. And for Real Kings, it was a very important match to qualify, and they are one step closer to qualify for next round. So the match result: Real Kings won the toss, chose to field. Putting into bat, GC Boys scored 73 for 7 in their 10 overs. Top scored by Viren, the captain's innings, 26 runs. And on the bowling side, 2 wickets captured each by Tetlinong and Kine. And chasing 73, the opening partnership between Neeraj and Vivek made it look very easy. The opening partnership was 59 runs. Neeraj scoring 29 out of 22 balls, Vivek scoring 26 out of 20 balls. And well finished by Yash with 17 runs in 5 balls at a strike rate of 340. So we have 2 awards to give away. Okay, 4 awards to give away, including the award for the day, 2 for the match. So the super striker of the match, sponsored by MTTM, is Viren for 3 sixes. So I request Bapida to He left? Okay, Pranay. Okay, Pranay can hand over the award. So the super striker is awarded based on the number of sixes scored, then number of fours, and if both matches, then we see the strike rate. Even though the strike rate wise, Yash scored at a very fast strike rate, but he was short of 1 6. And in terms of the final award for the match, man of the match for Golden Moon, sponsored by Golden Moon. It was a close contest between 2 batsmen, but based on the summary, I think there were 2 crucial moments that a bowler and a fielder has captured. Kine for 2 wickets and a crucial run out, which put a lot of pressure on the GC Boys. So it's Kine. I request Mr. Robin, the owner of Real Kings, to hand over the Man of the Match award to Kine for his excellent 2 wickets and a crucial run out. If not, it was a close contest between 2 batsmen,
But for us, we thought the target was quite easy to chase, and that was the reason why we chose to give it to the bowler. So we have 2 more awards. Best partnership of the day. It's none other than Neeraj and Vivek, who displayed high quality batting standards today. They showed us how to chase the big target. So I request Aditya to hand over the Best Partnership of the Day award to Neeraj and Vivek. Best Partnership is sponsored by Royal British International School. Thank you. We have one more award, the final award for the day. Best Economy of the Day, sponsored by Royal Croton. I call upon Yash Bagadia, the owner of Royal Croton, to hand over the award for the best economy of 2.5 by Viren. 2 overs, 1 wicket, and 5 runs. So the best economy of the day out of both the matches, Viren. The economy was 2.5. And we have one final award to give away, which was pending from day 1. So I call upon Yash to join again. Best economy of the day for day 1 of the league, opening day. It was Shashank from GC Boys. And I request Ashu to collect the award on behalf of Shashank. So best economy of the day, this was for day 1, which was the opening day. And it goes to Shashank. This award is sponsored by Royal Croton. Okay, we have best partnership for day 2. Best partnership for day 2 also goes to Real Kings. And it was between Yash and Virat Tuya. So we have best partnership for day 2 on Saturday. It's between Yash and Virat Tuya. Yeah, I request Dasharath to hand over the award. Best Partnership, sponsored by Royal British International School. This was for day 2. Their partnership was 56 runs. And the partnership was against Mavericks. Master Blasters, sorry for wrong information. And one final announcement, we still have the food stall. If somebody wants to have dinner, can enjoy the delicious food by Balaji. And I think we are done with the presentation ceremony. Thank you everyone for joining. Looking forward to see you all tomorrow for an exciting tournament matches where the decider will be done. So tomorrow, since it's a public holiday here, we will probably prepone the matches because last match is taking too much time. So we will try to prepone the first match and we will be announcing it in the captains and team representative group so that the first match team members can arrive on time and probably help us to finish the matches on time. Thank you very much. Thank you for joining. Signing off from WeCare YSL 2. कल डिसाइड होगा ये मेरे सर पे रहेगा कि किसी और सर पे जाएगा नहीं आपका इनका 3-4 अरे हम लोग का खत्म हो गया ना आपका एक बच्चा है तो आप लोग क्वालीफायर नहीं करेंगे ना मालूम है कल तक तो आपका है ना अगर 5 मैचेस में तो मैं वो भी 2 मैच पे गया था वो ही चल रहा था तीसरा चौथा मैच में स्ट्राइक रेट के हिसाब से बहुत गलत खेला है